Media friends, good afternoon. And we, the Anti-Corruption Foundation of the Kra Dadi District, unites today here in the Arunachal Press Club to convey the people of our Kra Dadi District with in connection issue of the central fund received against the Port and Finance Commission to the DPDO for the Kra Dadi District, and which the use amounting to the crores of the public money has been misused by that side concerned authority. On this particular subject, our anti-corruption Kra Dadi team has been working since long for the 8th month, and at first we had made a representation to a Deputy Commissioner Kra Dadi for proper inquiry on this matter, but DC Kra Dadi has not initiated, and thereafter, and we again has lost an FIR to OC Special Vigilance Cell for proper investigation in the matter on the date 22 November 2021. And also, the OC Special Vigilance Cell has not initiated and not taken any action upon our FIR. Then again, our team has filed a complaint to SP Special Vigilance Cell for non-registrations of our FIR dated on the 16th December 2021. And then SP Special Vigilance Cell has not also taken any action upon our complaint. Then again, as fourth time, our team has filed a complaint to the Chief Secretary, Chief Vigilance Cell, Government of Arunachal Pradesh, for non-registration of that our complaint in the FIR on dated the 3rd January 2022. And same, the Chief Secretary has not taken any action upon our complaint. Then thereafter, we come to know that the government will never heard our voice, and government couldn't give justice to us. And we also know that government is protecting the department, corruption department, and corrupted officer. And we also know that the government is involved in this malpractice. So there no option has left. Then our team come to approaching the Honorable High Court for look into the entire gamut of two misappropriation of the public money. And we also requesting the Honorable High Court for directing an inquiry by CBI under the supervision of the Honorable High Court. At last, Honorable High Court has issued order that today, reason is that today we are here in this press club. That is reason we bring this matter to the public domains. So other detail will be briefed by my president, Mr. Tai Tahar is here. And thank you very much. थैंक यू जीएस एंड जो हम डिटेल ये बताना चाहूँगा, हम लोग ने पीएल फाइल किया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, तो उससे कोर्ट से डायरेक्शन हुआ विद इन दी 4 वीक्स में इसको ये जो डायरेक्शन देगा, एंड इनिशिएट किया हम लोग कोर्ट। इसके लिए न्यायपालिका हाई कोर्ट को हम लोग थैंक यू बोलता है। एंड ये रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन, पोर्ट एंड फाइनेंस कमीशन रिगार्डिंग करा ददी डिस्ट्रिक्ट का, ये उसमें हम लोग जो आरटीआई करके डॉक्यूमेंट निकला है 14 करोड़ 47 लाख पैसा को करा दादी का पंचायत डिपार्टमेंट डिफीडियो हम लोग का करा दादी ने, और वहाँ का जो सेटिंग एमएलए और वहाँ का सेटिंग जो पावर में है उन लोग लेके मिसयूज किया गया है।
तो इसीलिए हम लोग जो इसलिए पब्लिक को हम लोग जानने देना चाह रहा है क्यों हम लोग का पब्लिक मनी को ये जो है हम लोग का पाई जो हम लोग टैक्स दे के हम लोग जो डेवलपमेंट जो पैसा हम लोग जो गवर्नमेंट हम लोग ये करता है, लेकिन इसको मिसयूज किया बोल के हम लोग ने इसको इसके लिए हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग है। तो ये आप लोग को हम लोग दे रहा है 14 करोड़ 47 लाख जो है हम लोग का करादादी पंचायत डिपार्टमेंट ने मिसयूज किया। एंड इसमें मिसयूज क्यों किया है बोलने से हम लोग यहाँ में आप लोग को नंबर 1 पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन दिया है 14 फाइनेंस कमीशन को लेकर। गाइडलाइन में क्लियर कट लिखा गया है, यहाँ में फेरा 2 में आप लोग इसको देख लीजिएगा। फेरा 2 में क्लियर कट लिखा गया है कि ये 14 फाइनेंस कमीशन को कौन सा जगह में पैसा को यूज करना चाहिए, कौन सा जगह में यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ में एकदम स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि 14 फाइनेंस कमीशन पैसा को यहाँ में बेसिक सर्विस इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई सैनिटेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी टैंक मैनेजमेंट स्वेज इन वेस्टलैंड मैनेजमेंट स्ट्रम ड्रेनेज, उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट एंड अदर रोड सीसी फुटपाथ एंड स्ट्रीट लाइट एंड ब्यूरल ग्राउंड, ये सब में 14 ये को FFC पैसा को यूज करो बोल के यहाँ में गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट मेंशन करके दिया है। लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का अथॉरिटी ने पंचायत डिपार्टमेंट ने इसको क्या किया है, ये जैसे गाइडलाइन है ऐसे नहीं किया, इसको वर्क ऑर्डर सिस्टम में अपना किटिन किन को दिया है। और इसमें देखिए तो ये सब मेंशन करने वाला एक भी चीज़ में उन लोग जो है वर्क को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि लार्ज करदमम इलायची वागन में ना जो इसको डायरेक्ट वर्क ऑर्डर देखिए और नंबर 2 में टेंडर नहीं किया, कंप्लीटली टेंडर ये NIT कॉल नहीं किया, ऐसे करके वर्क ऑर्डर सिस्टम में उन लोग ने दिया और ये गाइडलाइन को 14 फाइनेंस कमीशन का गाइडलाइन को वायलेट किया। तो ये है तो वायलेट किया है। तो क्या है, जो काम वर्क दिया जो बेनिफिशियरीज होता है वो जो लार्ज कर दो हम जो वो यहाँ का 14 फाइनेंस अंदर में नहीं आता है, वो तो अलग से स्कीम आता है। लेकिन इसमें डाइवर्ट करके पैसा को पूरा ये डायरेक्ट उन लोग ने बिल बना के उन लोग ऐसे करके पैसा खाया। पैसा क्यों खाया बोलने से हम लोग ये फोटो क्लियर का आप लोग को देखा रहा है। ये जो है हम लोग का चौथा बम्बू ना, हम लोग उसको ताबू बोलता है। तो ये जो बड़ा होने के लिए 10 to 15 ईयर्स लगता है। तो इसमें भी फोटो देखा के आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें फोटो देखा के डायरेक्ट इसमें भी 10, 20, 30 लाख का ऐसे बिल बना के पैसा ले लिया। तो ये करप्शन है और क्लियर कट है। तो इसीलिए और ये देखिए लार्ज करदमम का, ये लार्ज करदमम का जो हम लोग का बस्ती में हर कोई अभी लार्ज करदमम खेती करता है। वो ये सिंक्शन ये स्कीम के लिए खेती नहीं किया था, लेकिन वो हर कोई अपना बिजनेस पर्पस के लिए खेती किया था। लेकिन इसको उन लोग ने ये करके वो कंसर्न मालिक को भी नहीं पूछ के फोटो खींचके वो खेती को फोटो खींचके और बिल बना के पैसा को डायरेक्ट उतार लिया और का दिया। ये सब कब हुआ है बोलने से ड्यूरिंग दी ये जो पावर डिवोल्यूशन या जो दिफंग पंचायत जो जब दिफंग होते समय में, उस समय में यहाँ का पंचायत का डिपार्टमेंट का DPDO एंड वहाँ का कंसर्न डेवलपमेंट कमेटी MLAs लोग ने मिलके ये सब पैसा को लूट लिया और का दिया। तो ये हम लोग इसको स्ट्रांगली कंडेम करता है। इस टाइप का चीज़ जो नहीं होना है, तो सिर्फ फोटो दिखा के बिल बना के खाना ये अच्छा बात नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट में और एक देखिए जो हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप का इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड द सेक्शन 5 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशन। तो यहाँ में क्या है कि जो उन लोग टेंडर भी नहीं किया और NIT भी पब्लिश नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर दिया है तो दिया है,
उन लोग ने हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का या में डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप में यही कहता है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से और ब्लॉक से ये फार्म वाला को और कंट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन वाला को वर्क जो अवार्ड करना है, लेकिन ऐसे नहीं किया है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का ये जो DPDO ने ऐसे नहीं करके डायरेक्ट या में क्या किया है, पपुमपरे से और या का कैपिटल में जो पाम है इसको वर्क अवार्ड दिया है। तो ये जो है 2015 डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप ऑन प्रोफेशनल एक्ट को वायलेट किया गया है। तो इसके लिए इसको स्ट्रिक्टली इसके लिए जज करना चाहिए। 2 गाइडलाइन को इसमें हम लोग का ये जो ऑफिसर्स लोग ने ये किया गया है, वायलेट किया गया है। तो इसीलिए ये सब चीज़ ठीक नहीं है के हम लोग ने न्यायपालिका में कताया है और इसमें से अभी डायरेक्शन देगा। एंड अगेन इसमें ये हम क्यों बोल रहे हैं बोलने से हम लोग थ्रू RTI से ये पता चला है कि ये देखिए MS अतुबरी इंटरप्राइज IMC से ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ का फार्म को उधर में वर्क ओवर करार में दिया गया है। नंबर 1 2 MS हाके कंस्ट्रक्शन कंपनी वो भी IMC का है, ईटानगर का है। MS निगजा इंटरप्राइज वो भी IMC ईटानगर का है। MS 3G इंटरप्राइज वो भी ईटानगर का है। और MS BSS इंटरप्राइजेस नाहरलगुन पपुमपरे यहाँ का है। जबकि यहाँ का तो करादादी में वर्क अवार्ड करने के लिए इसमें डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप में नहीं लिखा गया है, वहाँ में आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसमें MS के तादो इंटरप्राइजेस ये भी यहाँ का है। एंड सरतम ब्रदर इंटरप्राइजेस ई सेक्टर ईटानगर का है, वो भी हम लोग का करादादी में वर्क जो अवार्ड किया गया है। एंड ऑल्सो यूनाइटेड ब्रदर्स डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड ए सेक्टर नाहरलगुन का, ये सब। और ये सिर्फ नहीं और बहुत सारा था, हम लोग ने पूरा को लिस्ट नहीं किया, ये ज़्यादा करने वालों ये सब जो है आउट ऑफ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का पाम को वर्क अवार्ड किया गया है, ये आउट ऑफ नॉर्म्स में है। तो इसीलिए हम लोग ने परसों 15 को ड्रग अवेयरनेस यंगते में गया था और साथ ही साथ में इसका बारे में जो हम लोग जो केस फाइल किया इसका बारे में जो ग्रांड विजिट के लिए भी गया था। और हम लोग का पास क्लियर कट सबूत है जिस खेती के लिए उन लोग पैसा लिया गया है उसका मालिक को भी हम लोग स्क्रूटिनी किया है। और जिस जगह में उन लोग ऐसे नेम से देख के पैसा उठाया है उसके लिए भी हम लोग पूरा ग्रांड रिपोर्ट में हम लोग ये जाके विजिट कर चुका है। और हम लोग का पास क्लियर कट ये है सबूत है और वीडियोग्राफिक भी है हम लोग का पास में। तो ऐसे करके ये जो करप्शन को हम लोग का करादादी में आने वाला दिन में ये नहीं होना है। और हम लोग का पब्लिक को ये बता दो, कल को इंक्वायरी तो जाएगा, श्योरली जाएगा। और कोई भी ऐसे करप्शन वाला को सपोर्ट मत करो, आप लोग क्लियर कट मैसेज देना है, करप्शन वाला को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये सब जो जितना अभी हम इंटरप्राइजेस बताया है या में क्या है कि वर्क एवरीथिंग एज पर द PWD का नॉर्म्स जो है एक पाम में 1 साल में एंड 6 मंथ ऐसे में सेम टाइम में 3 तो वर्क ऑर्डर सिर्फ अवार्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ में ऐसे नहीं है, जो जितना हम लिस्ट में नाम में बताया है वन टाइम में 6 7 8 9 टाइम्स मतलब सेम टाइम में वर्क अवार्डिंग किया गया है। जबकि ये जो है 100% वायलेट किया गया है यहाँ का PWD का नॉर्म्स को, यहाँ का हम लोग का ये जो अरुणाचल का ये जितना लॉ को ये वायलेट किया गया है। तो सेम टाइम में 3 वर्क ऑर्डर दे सकता है, लेकिन यहाँ में भी उन लोग ने गलत किया गया है। तो इसीलिए हम लोग इस बारे में इस आप लोग का माध्यम से और हम लोग का पब्लिक को ये संदेश देना चाहता है कि हम लोग का न्यायपालिका हाई कोर्ट में PL फाइल करके और ये 4 वीक होने वाला है। तो नियरली मार्च का 1-2 तारीख को हम लोग का फिर ये होगा, हियरिंग होगा। इसमें क्लियर कर देगा कि इंक्वायरी के लिए CBI ये जो SIC स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल का तरफ से बस्ती बस्ती में जहाँ में करप्शन हुआ है, जहाँ में काम जो गलत हुआ है, इसमें उन लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा।
तो पब्लिक लोग आप लोग हम लोग को साथ देना है और आप लोग के लिए हम लोग वॉइस उठा दिया है, क्लियर कट आप लोग बता देना है, गलत है तो गलत है और ऐसे बोल के आप लोग बता देना है। ये पब्लिक को आप लोग को हम लोग अपील है और ये आप लोग के लिए है। और ये हम लोग पीएल फाइल किया है तो ना हम लोग विड्रॉ कर सकेगा, ना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेगा, या फिर हम लोग को जीतना है या फिर हारना है। तो इसलिए हम लोग पब्लिक के लिए कर रहा है। सो विथ दिस एंड थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों ने मतलब डीसी एडीसी डीसी से लेके पूरा चीफ सेक्रेटरी तक दिया है, लेकिन गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो आपको मतलब क्या लगता है ये जो पूरा गवर्नमेंट का मशीनरी इन्वॉल्वमेंट है क्या इसमें ये करप्शन केस में, आपको क्या लगता है? देखिए ये केस में क्लियर कट है कि पहले स्टेट ऐसे होल एक ग्रुप कर रहा था, वो भी बीच में गायब हो गया और हम लोग पर्टिकुलर करादादी डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं। और ये केस में क्लियर कट मालूम है कि यहाँ का पंचायत का यहाँ का मिनिस्टर जो है इन्वॉल्वमेंट है और वहाँ का डीसी डीपीडीओ और जितना वहाँ का गवर्नमेंट का मशीनरी जो मिल के ये पैसा को खाया गया है। और वहाँ का डेवलपमेंट चेयरमैन स्पेशली एमएलए होता है, उन लोग पूरा मिल के ये चीज़ को पैसा को खाया है। ये आप लोगों को जो एक्विजिशन है 14 करोड़ 27 लाख लेके, ये बहुत ही बड़ा है, राइट? तो आप लोग कैसे पता चला कि ये चल रहा है? बोलिए, फर्स्ट एविडेंस कैसे पता चला? तो ये एविडेंस को हम लोग ने आरटीआई किया। ये को जुलाई का मंथ ऑफ जुलाई 2021 को हम लोग आरटीआई डाला था। तो इसी में हम लोग को पूरा डिटेल्स दिया है। इसमें इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ में लेके नहीं आया। तो उसमें पूरा डिटेल्स है जो कि हम लोग ऐसे ब्लाइंड हिट नहीं कर रहे हैं। हम लोग का पास पूरा आरटीआई में जो डॉक्यूमेंट फर्निश किया वाला डिटेल्स हम लोग का पास है। इसमें हम लोग को दिखाई दिया है और इसको वो कागज़ को हम लोग लेके सिर्फ ब्लाइंड हिट बात नहीं किया है, ग्राउंड विजिट किया है और हम लोग का पास क्लियर कट सबूत है। कौन सा ये 14 फाइनेंस है, कब से कब तक का है ये? 14 फाइनेंस कमीशन जो है 2016 17 18 एंड 18 19 इन 2021 में ख़त्म होता है। और अभी 15 फाइनेंस कमीशन भी चल रहा है 2022 में, वो भी गलत चल रहा है इस टाइप का, लेकिन हम लोग उसको अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये पान जो मतलब पूरा 14 फाइनेंस कमीशन का ही पान को यूज किया है ना, 1 साल का है ना 2 साल का, ऐसे कुछ? इसमें हम लोग का इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने दिया गया था। लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में ऐसे उन लोग ने सेम इसको 2 इंस्टॉलमेंट पैसा को 1 टाइम में उन लोग जो यूज़ किया है। जब पंचायत जब डिफंग था, पंचायत जब ये था ये जब डिफंग होके बैठा था, उस समय में जो है प्रेजेंट ये ऑफिसर और एमएलए लोग मिलके ये फंड को यूज़ किया गया था। मतलब उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो फंड भेजा है आप उसी जो आप बता रहा है ना, ये एरिया का डेवलपमेंट के लिए ये इसके लिए होते हैं, ऐसे मतलब वो स्कीम में वो ये में ऐसे लिख के आया था क्या? हाँ, इसमें क्लियर कट लिखा है, यहाँ पे यूज़ किया वाला को। इस पे बेसिक ग्रांट बोल के ना, बेसिक ग्रांट को यहाँ पे गाइडलाइन में है। बेसिक ग्रांट को कहाँ कौन सा जगह में यूज़ करना है, हम पहले रीडिंग करके बताया था। तो बेसिक ग्रांट है इसमें, और इसमें एक तो मास्क एंड सैनिटाइज़र है और एक तो किचन गार्डन है, एक तो शीट्स है। वो सब में मिला के पैसा जो है आया था, लेकिन वो सब को एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, पूरा का पूरा इसमें घपला हुआ है। इसीलिए हम लोग ने इसको बोल रहा है। जो ये आपका जो आप बोल रहे हैं जो घपला हुआ है, ऑब्वियसली इतना बड़ा अमाउंट है तो एक आदमी का हाथ नहीं होगा, इसमें बहुत सारा का हाथ होगा ना। तो आप लोगों को लगता है कौन कौन इन्वॉल्व है, कुछ आइडिया है? तो इसी में इन्वॉल्वमेंट तो हम पहले से बता रहे हैं। नंबर वन यहाँ का हाई लेवल से आया, मिनिस्टर से लेके हम लोग का एमएलए
और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का DPDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ना पंचायत का और इसका जो है प्रोजेक्ट ये जो है इंचार्ज ये जो PTA जय लोग वो सबका इन्वॉल्वमेंट है। और साथ ही साथ में वो ये ग्रांट में वर्क इम्प्लीमेंट तो बिल्कुल नहीं किया। उन लोग सिर्फ हम लोग को कागज़ सिर्फ दिखाई मिला है, पैसा इतना इतना गया है और क्या, लेकिन ग्रांट में कुछ काम किया नहीं है।